So now we will discuss माने how they have helped. तो इसीलिए paleontological evidences तो नहीं जो सगर तुम सा सोई था ऊपर तापर मु गले मो रूम में आंदो ओके paleontological evidences ने क्या किया so help us to करके इसमें हम लोग नंबरिंग कर देंगे तो सबसे पहले क्या डिस्कस किया तो अगर आपको याद है जो स्ट्रैटिफिकेशन तो स्ट्रैटिफिकेशन जो है उसमें हम लोगों ने देखा कि डिफरेंट लेयर्स में डिफरेंट टाइप्स ऑफ ये है कि नहीं फॉसिल्स तो इसीलिए सो नंबर एंड नेचर ऑफ फॉसिल्स क्लियर सो नंबर 1 इसमें हम लोग क्या देखेंगे दैट नंबर एंड नेचर ऑफ फॉसिल्स इन अर्ली रॉक्स ठीक है जी माने सपोज इन सम प्लेसेस यू आर फाइंडिंग ए लॉट ऑफ फॉसिल्स इसका मतलब वहां लाइफ के ज्यादा वेरिएशंस है कहीं कम मिल रहा है तो वहां कम वेरिएशंस ठीक है जी So the rocks of early era, जैसे हमारा Proterozoic era है, contains less number of fossils than the rocks of later eras like Kodak, Paleozoic, Mesozoic and Cenozoic. ठीक है? तो इन सब eras में ज्यादा fossils थे. And only fossils of simple marine invertebrates were found in these rocks. है कि नहीं तो इसीलिए पहले जमाने में जो थे अर्लियर आपका ज्यादा फॉसिल्स नहीं मिलता था तो इसका सिंपल मीनिंग क्या है दैट उस समय उतने ज्यादा ऑर्गेनिजम्स नहीं थे ओके तो इसलिए जिसमें ज्यादा ऑर्गेनिजम्स थे उसमें ज्यादा रिप्रेजेंटेशन था जिसमें कम ऑर्गेनिजम्स थे उसमें कम रिप्रेजेंटेशन तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉसिल्स इन सक्सेसिव स्ट्राटा so it indicates that every fossil present in the bottom rocks are simple however the recent fossils found in the upper layers are complex so one of the best fossil locations with respect to stratified arrangement is the Grand Canyon, US. है तो जो स्ट्रेटिफाइड अरेंजमेंट में जो था उसका बेस्ट एग्जांपल है ग्रैंड कैनियन यूएस ओके कॉमा which was cut by the Colorado River for ages. Okay, so nearly 2 kilometer tall mountains exist. Nearly 2 kilometer tall mountains exist. Giovanni Avduina. Okay, Giovanni Avduina used fossils from this place and proposed the geological time scale. Okay, propose the geological time scale. So nearly 2 kilometer time, okay, the geological time scale. He arranged the fossil history. Okay, he arranged the fossil
history in 24 hours. Okay, into 24 hours. Okay, तो इन्होंने इस तरह से किया. तो whenever we will study geological time scale, तो उसके बारे में हम इसका डिस्कशन करेंगे. So this is again one of the best evidences that we got from paleontology. ठीक है. तो पैलियोंटोलॉजी से यहाँ हमको सबसे बढ़िया एग्जांपल मिला. तापरे the next very important concept is called transitional links. Okay, and disparity. समझ रहे हो? तो उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसको अभी नहीं पढ़ते हैं. फाइन. नाउ so अब disparity between the past and present forms. मतलब उस जमाने में जो ऑर्गेनिजम्स मिल रहे थे एंड आज जो ऑर्गेनिजम्स मिल रहे हैं उसके बीच जो डिफरेंसेस हैं, so that is called disparity. ओके, तो इसको हम लोग कहते हैं disparity. ठीक है जी. So on the basis of the paleontological study, it has been shown that the early organisms is very different from their modern forms. Thus, the organisms have been changing since their appearance, which supports that evolution has been taking place. तो ये क्या सजेस्ट करता है कि evolution has been taking place. इसमें आप एग्जाम्पल लिख सकते हो. The ancestors of armadillos were क्या known as glyptodons, comma, which were huge as compared, okay, which were huge as compared to their recent forms. समझ रहे हो? उसी तरह से सिमिलरली, ये आपने आइस एज कार्टून में भी देखा होगा, सैबरटूथ, okay, was the ancestor of what? Tigers. But they were larger, okay, than the recent forms. Okay, recent forms. Similarly, the mammoths were the ancestors of elephant. Okay, but again, mammoths were larger. ठीक है. तो ये हम लोग को एविडेंसेस मिला था, है कि नहीं. नाउ जो सैबरटूथ है, अगर आपने देखा होगा वो जो कार्टून, तो सैबरटूथ टाइगर जो है, ओके, तो वो क्या है, इट वाज मच लार्जर एज कंपेयर टू प्रेजेंट डे टाइम. क्लियर. एंड सिमिलरली मैमथ्स जो है, तो वो क्या है, तो मैमथ्स जो है वो आज के टाइगर के कंपैरिजन में, आज के एलिफेंट के कंपैरिजन में काफी बड़े. सो दिस इज द कंसेप्ट. तो ये फोटो एक लाने का दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं आपको. सो सैबरटूथ का
एक रिक्रिएशन है सैबरटूथ। चलो, सो नाउ ये जो सैबरटूथ एंड मैमथ्स हैं, तो ये सब क्या साबित कर रहे हैं? दे आर बेसिकली प्रूविंग दैट in the course of evolution, the size of animals has actually decreased. है कि नहीं? The size of animals has actually decreased. But yeah, तो हो गया। तो ये आपका आ गया। सो दिस इज द सैबरटूथ एंड ये जो मॉडर्न डे का टाइगर है। ठीक है जी। सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ द एनिमल्स। Yes, sir. हाँ, उसके बाद हमें क्या मिला? दैट इज ट्रांजिशनल फॉर्म। So what are transitional forms? So the fossil records contain some transitional links. Okay, transitional links. Okay, links called as missing links. Transitional links which connect two different groups. Okay, two different groups of organisms. ठीक है, तो organisms, fine. तो organisms, full stop, they were called missing links because if only represented as fossils and no living form found now. समझ रहे हो? तो हम उनको कब मिसिंग लिंक बोलेंगे? जब ये सिर्फ फॉसिल्स में आपको मिलता है एंड एक्चुअली नहीं मिलता है, तो उनको हम लोग क्या बोलेंगे? सो उनको हम लोग बोलेंगे मिसिंग लिंक्स। और कनेक्टिंग लिंक्स, तो अगर वो आज के डेट में भी मिलते हैं, सो इफ represented as fossils as well as found living even now. ठीक है जी। तो अगर आज के डेट में भी मिलता है तो उसको हम बोलेंगे मिसिंग लिंक्स। नहीं मिलेंगे, अगर आज के डेट में नहीं मिलेंगे तो मिसिंग लिंक्स। Extent. अगर आज के डेट में मिलता है सो दैट इज कॉल्ड Extent. Connecting. links. तो इसीलिए ट्रांजिशनल लिंक्स। नाउ फुल स्टॉप, दे हैव फीचर्स ऑफ बोथ द organisms. Okay, the features of both the organisms. Okay, for example, okay, for example, in case of the corner, in case of the what? Archaeopteryx. Okay, in case of the Archaeopteryx lithographica,
ओके, तो आर्कियोप्टेरिक्स लिथोग्राफी का ये क्या है? ट्रांजिशनल लिंक एंड इसको मिसिंग लिंक बोलेंगे। ओके, Missing. ट्रांजिशनल Missing. लिंक या मिसिंग लिंक बिटवीन रेप्टाइल्स एंड बर्ड। Reptiles and eggs. समझ रहे हो? Birds. ना अगर आप किसी गधे को भी जाके, अंधा को भी जाके बोलोगे कि जो ब्रैकियोसॉरस है इट गेव राइज टू हमिंग बर्ड, तो समझ रहे हो? तो ये जो स्टोरी है ये किसी डेफ आदमी को भी इंटरेस्टिंग नहीं लगेगा, है ना? Nobody will ever believe that a crocodile has given rise to a bird because they are huge organisms, thousands of kgs, जबकि birds are in less than grams. So they never, nobody will believe. Okay, but okay, in case of calculated lithography, they show features of both reptiles and apes. ठीक है, तो उसमें रेप्टिलियन फीचर्स क्या क्या है एंड एवियन फीचर्स क्या क्या है वो हम लोग लिखें। ठीक है जी, सो रेप्टिलियन फीचर्स एंड एवियन फीचर्स। Fine. So these are the reptilian features. And these are the avian features. ठीक है, समझ रहे हो? Now reptilian features Yes, sir. कौन से हैं? So what are the reptilian features? तो body axis more or less lizard like. तो इसका जो body था वो around lizard जैसा ही छोटा सा था. Long tail is present. Bones are non-pneumatic. That is heavy. समझ रहे हो? Jaws are provided with teeth. Okay, कौन से teeth? That is homodont. Homodont teeth. Hand bears a typical reptilian clamp, and each finger terminates in a claw. Okay, presence of a weak sternum. तो एव्स में क्या होता है? एव्स में स्टर्नम स्ट्रॉन्ग होना चाहिए क्योंकि वहां उनके फ्लाइट मसल्स एसोसिएटेड है. The flight muscles are associated. Flight करने के लिए. So that is why they have what? They have strong muscles. A strong, a long sternum. But इसका sternum छोटा सा. तो अब avian features क्या क्या है वो देख लेते हैं. So इनमें avian features था feathers in the body, jaws modified into beak, forelimb modified into wings, hind limbs avian plan, intimate fusion of skull bones as in birds. क्योंकि रेप्टाइल में स्कल बोन्स फ्री होता है, समझ रहे हो? तो इसीलिए from the above facts it was clear that birds have been evolved. Birds have evolved from reptiles. Thus Huxley ने क्या कहा? That birds are glorified reptiles. तो देख रहे हो? तो इसीलिए हम लोग इनको ट्रांजिशनल लिंक्स बोलते हैं. मीन्स यू शुड हैव कॉमन फीचर्स. ठीक है, तो नाउ सिंस आर्कियोप्टेरिक्स showed common features with respect to birds and reptiles, we say they are transitional links between them. Okay, so ये आपका स्टोरी है. So now we will try to make a table of the
ठीक है। नाउ पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंस, ठीक है। तो अब एक टेबल बनाते हैं हम लोग। सॉरी 3/2 बनाएंगे। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे नाम कनेक्ट डैश टू एंड प्रेजेंट स्टेटस। पहला, दिस इज द नेम ऑफ द एनिमल। ओके, तो इधर लिखेंगे कनेक्ट डैश कनेक्ट टू डैश, एंड ये है उसका स्टेटस, मतलब ये ml है या cl है। ठीक है, तो ये हम लोग को डिस्कस करना है कि आज के डेट पे वो मिलता है या नहीं मिलता है। समझ रहे हो? चलिए, तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे वायरस। तो वायरस क्या होता है? नॉन लिविंग से टू लिविंग। लिविंग को कनेक्ट करता है, एंड ये कनेक्टिंग लिंक है। सी ऑल ऑफ देम आर ट्रांजिशनल लिंक्स, बट ये कनेक्टिंग लिंक है। क्यों कनेक्टिंग लिंक है? क्योंकि आज भी मिलता है। चाइना चले जाओ तो हर दिन मिलता है। समझ रहे हो? तापरे पॉरीफेरंस, ओके, पॉरीफेरंस या स्पॉन्जेस। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे इसको? प्रोटेरोस्पॉन्जिया। फाइन, तो ये है प्रोटेरोस्पॉन्जिया। ये किसको कनेक्ट करता है? कोआनो फ्लैजेलाटा ऑफ प्रोटिस्टा। ओके, तो कोआनो फ्लैजेलाटा ऑफ प्रोटिस्टा को कनेक्ट करता है किसको? पॉरीफेरा। सो ये आज भी कनेक्टिंग लिंक। तो इसलिए प्रोटेरोस्पॉन्जिया, ओके, इज रेफर्ड टू एज द, इसको हम लोग यहाँ लिख सकते हैं, कनेक्ट्स, इसको इधर लिख देते हैं। तो क्वानोफ्लैजेलेट, प्रोटेरोस्पॉन्जिया एक एग्जाम्पल है, क्वानोफ्लैजेलाटा उसका ग्रुप है। तो ये किसको कनेक्ट करता है? प्रोटिस्टा एंड पॉरीफेरा। या आप ऑल्सो लिख सकते हो यूनिसेल्यूलर, ओके, यूनिसेल्यूलर टू क्या? मल्टी सेल्यूलर। फाइन, तो इसलिए आप कुछ भी बोल सकते हो। तो ये है प्रोटेरोस्पॉन्जिया। ओके, सिमिलरली उसके बाद हम लिखेंगे पॉरीफेरा। ओके, तो पॉरीफेरा भी वही चीज इसी में आ जाएगा आपका। तो नेक्स्ट में हम लिखेंगे पॉरीफेरा, जिसको हम लोग पैराजोआ भी कहते हैं। ओके, पैराजोआ। तो ये किसको कनेक्ट करता है? प्रोटोजोआ टू मेटाजोआ। तो ये हमारा कनेक्टिंग लिंक। ठीक अच्छे, तापर तमर क्या आसीबो? नियोफिलिना गैलाथी। ये गारंटेड क्वेश्चन एरिया है, याद रखना। तो ये किसको कनेक्ट करेगा? एनेलिडा एंड मलस्का। तो ये अर्लियर ml but cl since 1954। है, मतलब क्या हो गया? चलो, CL मैंने क्या हो गया? क्यों उसको cl बना दिया?
वो मिल गया होगा जिंदा। तो वो हमें जिंदा मिल गया। ओके, मिल गया। तो एक्चुअली गैलाथियस एक शिप था। तो गैलाथिया जो एक शिप है जो एक्सकवेशन कर रहा था, तो दे फाउंड दीज एनिमल्स। ओके, तो वेयर इन ए रिवर। एक्चुअली आप देखे होंगे ना, बहुत सारे ये जो शिप पे पकड़ने जाते हैं, ये जो मछली वछली पकड़ने, ये जो बिग फिश पकड़ने नहीं जाते हैं जो साइंटिस्ट लोग, तो दे गो टू रिमोट आइलैंड्स, ऐसे आइलैंड जहां कभी कोई हाँ मिला भैया। नहीं। तो क्यों, वाई दे आर फाउंड देयर मालूम है? क्योंकि वो अनडिस्टर्ब्ड। कोई ह्यूमन डिस्टर्बेंस है। बट हाँ दूसरे जगह से क्या हुआ, उनको खदेड़ दिया गया। फाइन, सो दैट इज द कंसेप्ट। तो इसीलिए इसको हम लोग अर्लियर एमएल बोलते थे, नाउ सीएल बोलते हैं। ठीक है जी। तो इसके बारे में हम एक स्टोरी लिख सकते हैं इधर। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, उधर जगह नहीं होगा। ओके, so it was discovered off the Pacific coast of Costa Rica in the 1950s, where 10 specimens were collected. Later, additional specimens have been collected off the coast of Chile and of Cabo San Lucas, etc., etc. समझ रहे हो? इसीलिए आज ये क्या बन गया, सीएल, बट पहले क्या था, एमएल। Okay, so that is the concept. So इसलिए when we get living forms, so that is the reason we can include them in what? We can include them in your connecting. ठीक है? तो इसीलिए एक साइंटिस्ट है लेम्चे, तो इन्होंने इसका नाम दिया था, समझ रहे? So the name was given by लेम्चे. Okay. ये जो आपने सामोआ देखे थे, सामोआ, सामोअन्स, ये एक तो रॉक के पिक्चर में नहीं है सामोअन्स, तो लाइक दैट। चलो समझ में आया? तो ये नियोफिलीना हो गया। तो उसके बाद आएगा हमारा क्या, दैट इज कॉल्ड पेरीपेटस। ओके, तो पेरीपेटस क्या है, एनेलिडा से आर्थ्रोपोडा। तो दिस इज कनेक्टिंग लिंक। तो आज भी मिलता है, तो दैट इज वाई इसको हम लोग क्या कहते हैं, कनेक्टिंग लिंक। ताप और है, उसके बाद आ जाइए क्या हो जाएगा हमारा। तो अर्लियर इट वाज थॉट दैट जो प्रोटोकॉर्डेट्स हैं, ओके, प्रोटोकॉर्डेटा, so they are connecting link between non-chordates and chordates, है कि नहीं? तो ये non-chordates and chordates के बीच में, chordates के बीच में कनेक्टिंग लिंक है, एंड lot ml but a lot cl also, क्योंकि ये तो एक पूरा कैटेगरी हमने डिस्कस कर दिया ना। तो प्रोटोकॉर्डेटा एक ऑर्गेनिज्म थोड़ी है, प्रोटोकॉर्डेटा इज ए ह्यूज ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो इसमें बहुत सारे लिविंग फॉर्म्स भी हैं, बहुत सारे एक्सटिंक्ट फॉर्म्स भी हैं। ओके,